Okay, let's start. Uh, Let me show my entire screen. Is this lecture slide is visible to you people? Yes, sir. Okay. Today's topic is about maintenance work quality, safety and maintenance tasks, and post-maintenance testing. So, maintenance work quality. Good quality maintenance work lead to good result. Often that result in reduction or elimination of unexpected failure, lower cost, better safety, increased confidence in work performed. If you perform a good quality of maintenance works, then ultimately you will have reduction or elimination of unexpected failure. That good quality maintenance work may be preventive maintenance or regular inspection that leads to reduce your unexpected failure. And if these failures are reduced or eliminated, then ultimately it will lower your cost and you will have a better safety. Also, with this quality maintenance work, it will also increase your confidence that you have performed better work, and in future you will be doing same quality job as you have done now. So good quality maintenance work can only be accurately measured after after the specification of expectation. You have some expectation about any equipment or your plant. Okay, and if after the maintenance work, after the maintenance work, that work is according to your specified expectation, so that means you are satisfied. So in term of maintenance work, that will be of a quality work. Of once the aim of maintenance work is clearly identified, there are certain steps that are listed below and useful in producing good quality maintenance work. The first one is limit perplexity, means uh, you have to remove any confusion or any blankness in your work. So often the request for maintenance is incomplete and inaccurate. Ensure the work's proper completeness and accuracy prior to taking concrete steps. अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो मेंटेनेंस वर्क है वो किसी वजह से इनकम्प्लीट भी रह जाता है और सही भी नहीं होता, ठीक है ना। सो हमें इंश्योर करना है कि हम जो है वो प्रॉपर ठीक तरीके से काम करें और ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन और जो या कोई इनकम्प्लीटनेस इन योर जॉब जो है वो रह ना जाए, ठीक है। The second one is define goal. Goal should be set by the maintenance team and its supervisor. मेंटेनेंस टीम और उसकी सुपरवाइजर को एक गोल सेट करना चाहिए कि हमने मेंटेनेंस की एक्टिविटीज किस तरह परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने हैंडल करनी है और सारे के सारे टास्क को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट करना है. Ensure that team clearly understand the objective of maintenance work prior to its start. और मेंटेनेंस टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो मेंटेनेंस के काम को स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करे कि वो आया अपने ऑब्जेक्टिव्स पे क्लियर है, उन्होंने कौन कौन से मेंटेनेंस काम करने हैं. ये ना हो कि वो रैंडमली जो है अपना काम स्टार्ट कर दे. सो दे मस्ट बी able to understand the objective for maintenance work prior to its start. Avoid unsafe practices. Do not permit temptation to minimize that maintenance time by shortcutting prescribed safety procedure. अच्छा, अनसेफ प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाए किस तरह. फॉर एग्जांपल अक्सर लोग होते हैं वो टाइम को बचत करने के लिए या मेंटेनेंस टाइम को कम करने के लिए सेफ्टी पे कंप्रोमाइज करते हैं और अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं. इसलिए ये कहा जाता है कि परमिट ना किया जाए कि मेंटेनेंस के टाइम को रिड्यूस करे बाय शॉर्टकटिंग प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी प्रोसीजर, के वो सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो. अक्सर सेफ्टी प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि आपको कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं, काम का टाइम भी बढ़ जाता है बिकॉज यू हैव टू वेयर ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट्स. ठीक है ना, दस्ताने आपने पहनने होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उनकी वजह से काम में थोड़ा आपको डिफिकल्टी आती है. तो अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि
हेलमेट नहीं पहनते, दस्ताने नहीं पहनते, बस शॉर्टली वो अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए वो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो ये चीजें आप लोग कोशिश करें कि लॉ ना हो या उसको मिनिमाइज करें, कि वो मेंटेनेंस टाइम को कम करे। किस वजह से कम करे? बाय शॉर्टकटिंग प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी प्रोसीजर, कि वो सेफ्टी प्रोसीजर को बस ना फॉलो करे और अपने काम मेंटेनेंस काम को शुरू करे। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। डोंट ओवरलुक सेकेंडरी डैमेज, सेकेंडरी डैमेज की तरफ जो है वो ना जाएं, कोशिश करें। इंश्योर दैट लेस ड्रामेटिक सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आर नॉट ओवरलुक्ड, अदरवाइज दे कुड बी कॉस्टली एट लेटर स्टेज। सेकेंडरी डैमेज क्या है? सेकेंडरी डैमेज वो है कि जो एक लेट से एक प्राइमरी डैमेज के बाद जो है वो आवरली या वीकली या इन डेज जो है वो फर्दर वो डैमेज जो है वो फैलता जाए, ठीक है ना। तो ऐसे काम आप लोगों ने नहीं करने, या मतलब इंश्योर करना है कि आप जो है वो सेकेंडरी डैमेज को ओवरलुक ना करें, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर है लेट से एक बंदा है वो कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो उस मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से वक्ती तौर पे तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें स्टिल इशू होता है तो वो फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ने के बाद जो है वो एक टाइम आ जाता है कि वो एक बड़े लॉस की तरफ चले जाता है। सो आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। रिपोर्ट एज मेंटेनेंस वर्क प्रोग्रेसेस, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई मसला आता है तो फिर मुझे रोक क्वेश्चन आप लोग करें। रिपोर्ट as the maintenance work progresses. You have to report all the relevant information that can be useful for performing similar tasks in future. Let's say अगर आपको कोई आप कोई फेस करते हैं मेंटेनेंस एक्टिविटी, या कोई मेंटेनेंस कोई ऐसे इक्विपमेंट की करते हैं जो कि फेल हो चुका हो या उसमें बार बार इशू आ रहे हैं, सो बेटर इज टू रिपोर्ट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो डेटाबेस में, और उस इंफॉर्मेशन को देख के अगला बंदा जो है वो सीखे, और उसी तरह के अगर इश्यूज आ रहे हैं फ्यूचर में तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करे। डू नॉट यूज सेकेंड हैंड पार्ट्स, ये कहते हैं कि कोशिश की जाए, हद तुल वसा कोशिश की जाए कि सेकेंड हैंड पार्ट को अवॉइड किया जाए, ना यूज किया जाए, ठीक है। जब इंश्योर दैट फील्ड पार्ट्स आर नॉट रिप्लेस्ड विद सेकेंड हैंड पार्ट्स, क्योंकि उनका भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन यूजुअली आमतौर पे हम लोग जो है वो पाकिस्तान में ड्यू टू कॉस्ट हम जो है ये यूज करते हैं कि हम सेकंड हैंड पार्ट्स जो है वो खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं, ताकि सेकंड पार्ट जो है सेकंड हैंड पार्ट्स जो है वो थोड़े सस्ते होते हैं एज बनिस्बत न्यू पार्ट्स के। तो ये यहाँ पे क्वालिटी मेंटेनेंस वर्क के लिए ये आपको कहा गया है कि आप लोग सेकंड हैंड पार्ट्स ना यूज करें। री इंस्टॉल विद एक्स्ट्रा केयर, ड्यू टू एवरी जो है हेडिंग जो है वो एक क्लियरली स्टेटमेंट है, लेकिन हमें जो है वो आगे भी थोड़ा देख देख लेते हैं ताकि आप लोग को और भी क्लियर समझ आ जाए। ड्यू टू वेरियस फैक्टर द कंडीशन ऑफ सम इक्विपमेंट system parts or material may deteriorate with time. Thus, when new or repair part material are reinstated, excessive force can damage other part and avoid introducing new failure with while correcting the old one. अच्छा, ये कहते हैं काफी फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि हम किसी इक्विपमेंट या सिस्टम या पार्ट्स जो है उसको यूज करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसमें खराबियां आती हैं, उसमें उसकी डिप्रिसिएशन होती है, उसमें कई चीज़ें होती हैं जो कि अपनी असल हालत जो है वो खो बैठते हैं। थस उसमें कुछ फॉल्ट्स आने का मसला होता है, ठीक है ना। तो हमें उसको फिर या रिपेयर करना पड़ता है या हमने उसको चेंज करना पड़ता है ताकि उसको हम दोबारा उस कंडीशन में लेकर आए, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जब आप इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल करें तो आप बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को खोल रहे होते हैं या उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे हमारा काम होता है तो उसमें सडनली एक्सेसिव फोर्स या हमारे अनकेयरफुल आप कह सकते हैं एटीट्यूड की वजह से और जगह पे भी कहीं डैमेज आ सकता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें और आप इन री इंस्टॉलेशन जो है वो विद एक्स्ट्रा केयर करें, ठीक है ना।
अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू फेलियर व्हाइल करेक्टिंग द ओल्ड वन। अक्सर हमारे साथ होता भी इस तरह है कि हम एक कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस की, कोई ऑब्जेक्ट फेल होता है तो उसको ठीक कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो किसी और जगह भी मसला आ जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई एक मशीन ठीक कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें कोई मोटर खराब है और आप जो है वो उसको ओपन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, उसके सडन दौरान आपसे कहीं पे एक्सेसिव फोर्स की वजह से जो है नट बोल्ट खराब हो गए, या उसके गियर कहीं टूट गया, या कोई भी शाफ्ट जो है वो आपने एक पतली शाफ्ट है उसको आपने ज्यादा फोर्स दिया, उसकी वजह से उसमें जो है वो बेंडिंग आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह की आप एक्टिविटी केयरफुली परफॉर्म करें ताकि आपके एग्जिस्टिंग जो फेलियर है उसके अलावा कोई और फेलियर ना हो। फॉलो अ सिस्टम अप्रोच टू बॉक्स अप। एक सिस्टम अप्रोच यूज करें ताकि हर एक एक्टिविटी को आप बॉक्स अप करें, मींस खत्म करें, एक तरीके से खत्म करें। देयर इज अ टेंडेंसी टू क्लोज अप क्विकली आफ्टर फिनिशिंग अ रिपेयर। आफ्टर द रिपेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जब रिपेयर कर लें? सबसे पहले तो आपने करना है चेक फॉर सेफ्टी। आपने सेफ्टी के लिए चेक करना है कि आया रिपेयर के बाद जो है वो सिस्टम ठीक है कि नहीं है, सेफ्टी के हवाले से वो सेफ भी है कि नहीं। रिपेयर तो हो गई, आइंदा इसमें कहीं इस तरह की डैमेज या कोई फॉल्ट तो नहीं आएगा जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होगा। इंश्योर दैट ऑल हॉट कीज आर रिटर्न टू अप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड इन्वॉल्व पर्सन अकाउंटेड फॉर इट। और ये भी इंश्योर करें कि जितनी भी कीज हैं या नट बोल्ट्स हैं वो आपने प्रॉपरली अपनी जगह पे प्लेस किए हैं कि नहीं। और जो बंदा ये मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो इसके लिए अकाउंटेबल है। जिस तरह हम अक्सर मशीन्स या इक्विपमेंट जो भी ओपन करते हैं तो हमारे पास उसमें जगह जगह पे नट बोल्ट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर होता भी इस तरह है कि हमसे कुछ ना कुछ जो है वो नट बोल्ट्स या जो कीज हैं वो रह जाती हैं, हम उसको प्रॉपरली फिट नहीं कर पाते, फिर आखिर में देखते हैं कि यार ये किस जगह की जो है वो ये नट बोल्ट्स रह गए हैं, ताकि हम इसको दोबारा लगाएं। अक्सर तो इस तरह छोड़ भी देते हैं कि बस ठीक है यार, सेफ है, कोई नहीं इशू। सो आप लोगों ने चेक करना है अगर वो इक्विपमेंट जो है वो हैजर्डस है, सेफ्टी के हवाले से वो ज़्यादा जो आप कह सकते हैं एक किस्म का कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। तो उसको आपने फिर ठीक तरीके से हैंडल करना है, और इस तरह आपने उनको नहीं छोड़ना। चेक फॉर ऑल रिपेयर टूल्स इक्विपमेंट यूज, डू नॉट रिस्टार्ट इन द इवेंट ऑफ मिसिंग आइटम। अच्छा, कोई देखें आपने कोई रिपेयर टूल्स इक्विपमेंट में नहीं छोड़ तो अनरिपेयर छोड़ तो नहीं दिए, ठीक है ना। और जब भी आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म कर लें तो मशीन को क्विकली या प्लांट को क्विकली स्टार्ट ना करें, ठीक है। अगर कोई आइटम उसमें मिसिंग है, क्योंकि अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो जाहिर है वो एक दूसरे के साथ लिंक है तो मूवमेंट होगी। अगर कोई इक्विपमेंट अपनी जगह पे मिसिंग है तो वो फिर फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है उसमें फर्दर ब्रेक डाउन भी आ जाए। टेस्ट रिपेयर आइटम प्रायर टू इट्स हैंड बैक। वापस करने से पहले या हैंड बैक ओवर टू द कंपनी या जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, उसको हैंड बैक करने से पहले टेस्ट करें रिपेयर आइटम को, आया ये अप टू एक्सपेक्टेड जो फंक्शन है वो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो देन यू हैव टू अगेन ओवरलुक टू द सिस्टम। कंप्लीट ऑल अप्रोप्रिएट जॉब रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। सारे जॉब रिकॉर्ड जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने पास कंप्लीट रखें। टास्क सच एज इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्लानिंग एंड फेलियर एनालिसिस रिलाई हेवीली ऑन इफेक्टिव मेंटेनेंस हिस्ट्री। अगर आपकी हिस्ट्री मेंटेनेंस हिस्ट्री होगी तो आप देखेंगे कि आपकी ये सारी एक्टिविटीज जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म होंगी। अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होता है कि लोग जो गाड़ियां बेचते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास इसका कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल है कि कब हमने कितने किलोमीटर चली, इसके बाद कितने किलोमीटर के बाद हमने ऑयल चेंज किया, कौन कौन सी इसकी सर्विसिंग की, तो वो सारी डिटेल इसके पास होती है, ठीक है ना। जो वो शो करता है कि इसमें कौन कौन सी फॉल्ट आई, तो जो गाड़ी खरीदने वाला होता है वो भी उस रिकॉर्ड से सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई हो सकता है कि वो देख सकता है कि आया ये इसमें कोई मेजर फॉल्ट्स आई हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो वो इन चीज़ों से सेटिस्फाई। इसी तरह आपकी कंपनीज में भी जो इक्विपमेंट्स है उसके सब
मशीन्स और प्लांट्स के जितने भी एसेसरी हैं उस सब का मेंटेनेंस रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो उस मशीन की या उस सिस्टम की एफिशिएंसी बता सके कि कितना एफिशिएंट है, कितनी दफ़ा इसमें मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आई, कहाँ कहाँ आई। तो ये एक हेल्पफुल टूल है फॉर कैरिंग आउट इफेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, safety and maintenance tasks. In addition to general safety consideration, other factors that influence the safety dimension of maintenance tasks include कुछ सेफ्टी कंसिडरेशन है जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए while performing maintenance tasks, जिसमें है numerous maintenance tasks or job are in direct response to need of working safety। ज़्यादातर हम मेंटेनेंस करते इसीलिए हैं कि हम इन रिस्पॉन्स टू नीड्स ऑफ वर्किंग सेफ्टी के आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ बनाएं, ठीक है ना। जो आम जनरल मेंटेनेंस एक्टिविटी वो तो होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सेफ्टी की वजह से भी मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं ऑन क्रिटिकल प्लांट्स और इक्विपमेंट। सो कंसिक्वेंटली सेफ्टी नीड्स ऑगमेंट मेंटेनेंस टास्क और जॉब, ठीक है ना। इसलिए सेफ्टी के लिए जो है हमारे पास इन लार्ज मेंटेनेंस टास्क और जॉब होनी चाहिए। आम मेंटेनेंस तो जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम इंस्पेक्शन के थ्रू और वेरियस टूल्स के जरिए हम कर लेते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क होती हैं जो कि सेफ्टी को थ्रेट करती हैं, ठीक है ना, तो हमें वो चीज़ें जो है या वो एक्टिविटीज वक्त पे परफॉर्म करनी होती हैं। Numerous maintenance tasks or job are hazardous and lead to hazardous solution. Thus, maintenance work is cause of safety related problem. ये इस तरह है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेंटेनेंस टास्क या जॉब्स होती हैं जो कि हैजर्डस होती हैं और उस एंड लीड टू हैजर्डस सॉल्यूशन, और वो हमें एक किस्म का वो एक हैजर्डस सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है ना। जिस तरह अगर आप देखें कि अगर आप प्रेशर वेसल हो गया, बॉयलर हो गया, या ऐसे इक्विपमेंट्स जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग हो रही हो और वो डेंजरस भी हो, ठीक है ना, तो उस तरह की जॉब्स जो है मेंटेनेंस जॉब्स फिर हैजर्डस भी होती हैं। इसीलिए हम मेंटेनेंस जो है उसको हम लेते हैं इज मेंटेनेंस वर्क को हम लेते हैं इज अ कॉज ऑफ सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, के एक सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है मेंटेनेंस, ठीक है ना। So, some aspects of maintenance work that give its dubious safety reputation are as follow. कुछ ऐसे मेंटेनेंस वर्क्स हैं जो कि हमें अनसर्टन करते हैं, जो हमें शक में ला देते हैं, ठीक है, अबाउट सेफ्टी रिपुटेशन, कि ये सेफ है भी कि नहीं। वो कौन कौन सी टास्क हैं? द फर्स्ट वन इज न्यूमरस मेंटेनेंस टास्क अकर इनफ्रीक्वेंटली, e.g. machine failure. This thus favor opportunity to determine safety related problem and introduce remedial measures। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी ज़्यादातर मशीनों में जो है वो मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म होती है इनफ्रिक्वेंटली, मतलब ज़्यादा इस तरह नहीं परफॉर्म होती बार बार, ठीक है ना। तो जिस तरह मशीन फेलियर्स हो गए या कहीं पे अलाइनमेंट हो गई, एडजस्टमेंट हो गई वगैरह वगैरह, तो ये डिटरमाइन करना हमारे लिए वहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि आया हम इसको फर्दर जो है वो रिपेयर करें या फर्दर इसकी ओवरहालिंग करें कि ना करें। तो ये कुछ शुबुहात होती हैं जो कि हमें कंसर्न कर देती हैं कि हमें इतना पता नहीं होता कि आया अब ये सिस्टम जो है वो सेव है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो है वो मेंटेनेंस एक्टिविटीज की तरफ फिर कंप्लीट इसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं करती कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। सो ये फिर अक्सर हमें सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम देती है कि उसमें कुछ एक मेजर फॉल्ट आ जाता है, जो कि हम यूजुअली जो आम रूटीन में जो मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये भी इसी तरह की एक एक्टिविटी होगी, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में एक बड़ा सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। The second one is maintenance work performed in unfamiliar surrounding means that hazards such as rusty rail, broken light fitting and missing grating may pass unnoticed। कुछ ऐसी मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं जो कि अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में हम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हैंड रेल्स हैं, ये जो
आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे अगर आप जाएं तो उसके जो हैंड रेलिंग होती है, जो साइड पे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो रेलिंग होती है, हैंड रेलिंग, ठीक है, जिसे आप पकड़ के चलते हैं, तो अक्सर ये रस्टेड होती हैं, या कहीं पे आप चढ़ के उसको मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये रस्टेड होती हैं, ठीक है ना। और ये भी जो है हो सकता है टूट जाए और आप गिर जाएं, या अगर कहीं पे ब्रोकन लाइट फिटिंग्स है वो उसको डील करते हुए वो भी हैजर्डस हो सकती हैं। या मिसिंग ग्रेटिंग्स, ग्रेटिंग्स कहते हैं जब आप बड़े बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स आप देखें शुगर मिल में या कहीं पे भी, तो उसके जितने भी फ्लोर्स हैं, जिस तरह आप छत जमीन पे जाते हैं किसी दूसरे फ्लोर पे तो आपके पास ये जमीन होती है, ये फ्लोर होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह स्टील स्ट्रक्चर में भी जो फ्लोरिंग होती है ग्रेटिंग से बनती है। ग्रेटिंग्स मीन्स जो आप देखते हैं ये नालियों के ऊपर जो कवर्स लगी होती है ना स्टील बार्स की, ठीक है ना, तो ये किस्म की ये ग्रेटिंग्स होती है, ठीक है ना। तो अगर आप काम के दौरान कहीं पे जा रहे हैं, ये मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पे कहीं मिसिंग ग्रेटिंग्स हैं, तो वो भी आप लोग जो है वो अननोटिस होने की वजह से जो है वो आप गिर सकते हैं और आपको चोट वगैरह आ सकती है, ठीक है ना। या आप ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेफ्टी के रिलेटेड है, जो कि अक्सर हम अननोटिस कर देते हैं और इसकी वजह से फिर हमें इश्यूज आते हैं इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं चोट आ सकती है आपको, आप जख्मी हो सकते हैं, इवन डेथ भी अकर हो सकती है अगर आप इन चीज़ों को सीरियस ना लें। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रेगुलर कम्युनिकेशन विद वर्कर इन सम मेंटेनेंस टास्क। अच्छा, कुछ टास्क में जो है वो मेंटेनेंस रेगुलर कम्युनिकेशन गैप होता है, वो आप अपने वर्कर्स और जो जो अदर स्टाफ है उसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप होता है और वो डिफिकल्ट होता है आप उसको मेंटेन करने। फॉर एग्जांपल आप मेन जो है कंपनी में है और रिमोट एरियाज पे जो है वो क्या नाम है कंपनी है, प्लांट है, ठीक है ना। तो अक्सर इस वजह से भी जो है रेगुलर कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है कि बार बार जो है वहाँ पे कोई प्लांट में इशू आ रहा है और ये बार बार यहाँ पे उसको मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज ठीक ठीक तरीके से पहुंच नहीं रहा कि मसला कहाँ पे है, ठीक है ना। तो अक्सर ये कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करना ये भी मुश्किल हो जाता है विद वर्कर्स, क्योंकि आप 24 घंटे तो जो है वो सुपरवाइजर वो उसके साथ नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें फिर डिफिकल्टी आ जाती है। जिस तरह अगर आप चलें इस एग्जांपल को छोड़ें, ये फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, some maintenance work may require performing tasks such as disassembly of corroded part or manhandling cumbersome heavy part in poor lit area and confined spaces। अच्छा, poorly lit area जहाँ पे रोशनी की कमी है या आप हैवी पार्ट्स को डील कर रहे हैं या डिसअसेंबली कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो है मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। या कंफाइंड स्पेसेस हो तो वहाँ पे भी महदूद स्पेसेस, और वहाँ पे आपको लेट्स से एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स मूव कर रहे हैं और वो कंफाइंड भी है, ठीक है ना, बट आपने अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, सो दैट एरिया इज आल्सो क्रिटिकल। Disassembly previously working machinery thus working under the risk of releasing stored energy। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या प्लांट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ एनर्जी स्टोर हुई होती है, ठीक है ना। तो आप उसको डिसअसेंबल करते वक्त जो है वो एहतियात करें, क्योंकि मे बी देयर इज अ रिस्क दैट मे डैमेज यू। सडन नीड फॉर मेंटेनेंस वर्क अलाउ लिमिटेड टाइम टू रिस्पॉन्स। अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं या मेंटेनेंस एक्टिविटी या मेंटेनेंस वर्क जो कि हमने एक अलाउड लिमिटेड टाइम के दौरान करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्विकली अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उसमें भी सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है कि आप अक्सर लोग जल्दी जल्दी काम की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। 7.1 Performance of maintenance work inside or underneath machinery such as air duct, pressure vessel and large rotating machine। ये भी एक फैक्टर है जो कि सेफ्टी के रिलेटेड कंसर्न है कि आप अगर आप ऐसी जगहों पे मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज you will face a difficult situation in term of your health or in term of a big accident during your work।
परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस वर्क एट ऑड आवर्स इन रिमोट लोकेशन एंड इन स्मॉल नंबर्स। अच्छा, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं कि जो कि आप ऑड्स आवर में करते हैं, मतलब वो आवर्स डिफाइन नहीं होते, किसी वक्त भी जो है वो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, किसी वक्त भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज आ सकती हैं, और वो ऐसी जगहों पे भी हो सकती हैं जो कि रिमोट लोकेशन हो, सो यू हैव टू ट्रेवल, ठीक है ना। आपको छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो दूर मूव भी करना होता है, ठीक है ना। और आपकी जो टाइम भी डिफाइन नहीं होती, वो रात को या किसी वक्त भी जो है वो एक्टिविटीज आ सकती हैं, ठीक है ना। सो वही है कि आपकी जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इससे अराइज हो सकती हैं, कि बंदा हमेशा जो है ट्रेवलिंग करता रहे, जॉब की नेचर ऐसे हो कि हमेशा ट्रेवलिंग करता रहे, अपने रूटीन टाइम के अलावा फर्दर टाइम भी जो है वो कंज्यूम करे इन ऑर्डर टू परफॉर्म मेंटेनेंस एक्टिविटी। Need to transfer heavy and bulky material from a warehouse to maintenance workplace, sometimes using lifting and transport equipment well outside a strict maintenance regime. अच्छा, ये भी एक सेफ्टी कंसर्न होता है कि आपको हैवी और बल्कि मटेरियल एक फ्रॉम वेयर हाउस जो है, जो आपके सिस्टम या प्लांट में है, उससे जो है चीज़ें उठाना और मेंटेनेंस वर्क प्लेस तक लेकर जाना। उसमें आप अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी क्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, वो क्रेन्स ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी जो है वो एक रिस्क होता है। इसके अलावा अगर आप उसको एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी सेफ्टी रिस्क आता है। अक्सर आप देखें तो ये हतार हरिपुर रोड पे बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे होते हैं, जिसपे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, प्रेशर वेसल हो गए, इवन ब्रिज हो गए, या बड़े बड़े सिलेंडर्स हो गए, शुगर के पार्ट्स, गियर्स हो गए वगैरह। तो अक्सर उनकी ये जो लेंथ भी होती है और ट्रक की लेंथ, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है, और वो चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं कि वो ट्रक से बाहर तरफ निकली होती हैं। सो ये भी जो है वो एक सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आप क्या करने हैं, सेफ्टी सेफ्टी रिलेटेड जो है वो मेंटेनेंस टास्क हैं, वो ठीक तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। गाइडलाइन फॉर इक्विपमेंट डिजाइनर टू इम्प्रूव सेफ्टी इन मेंटेनेंस। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस है जो कि डिजाइनर्स को अपने सामने रखनी चाहिए वाइल डिजाइनिंग एनी पार्ट्स, एंड दीज गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू सेफ्टी इन मेंटेनेंस। कि वो चीज़ तो डिज़ाइन कर दे, ठीक है, अपनी फंक्शन के लिए, लेकिन उसे सेफ्टी को भी अपने सामने मद्देनजर रखना है। इस तरह नहीं कि वो एक ऐसा पार्ट बनाए जो कि अपना काम तो करता हो लेकिन सेफ्टी रिलेटेड जो है वो ना हो, सेफ्टी इसमें ना हो, ठीक है ना। तो वन वे टू इम्प्रूव मेंटेनेंस सेफ्टी is to minimize the need for maintenance in a system or equipment at the design stage. If need for maintenance cannot be eliminated, the designer should follow the guideline for improving। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई है कि जो डिजाइनर है उसको सिस्टम इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसमें मेंटेनेंस के रिलेटेड सेफ्टी हो, जो मेंटेनेंस बंदा कर रहा है वो उसमें सेफ हो, और अगर कोशिश तो करे कि उसमें मेंटेनेंस ना आए, लेकिन अगर उसमें मेंटेनेंस आती भी है तो वो सिस्टम को ऐसे डिजाइन करे कि उसमें मेंटेनेंस की नीड कम से कम हो। लेकिन अगर वो मेंटेनेंस को की नीड को उसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकता तो उसे फिर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जिसमें नंबर 1 है सिंप्लीफाई द डिजाइन एज मच एज पॉसिबल, कम्प्लेक्सिटी जनरली एड टू मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ये इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लाइन है और आप लोग उस पर समझते भी हैं। Provide fail-safe design to prevent injury or damage in the event of failure। ऐसा डिजाइन वो दे जो कि सेफ हो, फेल ना हो, फेल सेफ डिजाइन हो, ठीक है ना। अगर वो डिजाइन फेल सेफ नहीं है तो उसमें इंजरी या डैमेज का खतरा आ सकता है अपॉन देयर फेलियर। जैसे आप डिजाइन कर रहे हो बॉयलर या प्रेशर वेसल को, तो आप उसमें आपका जो इनसाइड प्रेशर है बॉयलर के अंदर, ठीक है ना, तो स्टीम का, तो आप उस बेस पे डिजाइन करते हो, तो आप अपनी डिजाइन को इस तरह रखो कि वो सेफ हो। इस तरह ना हो कि आपने डिजाइन के हवाले से उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रखी और पैसे बचाने के लिए आपने कम से कम थिकनेस ऑफ मटेरियल जो है या प्लेट्स यूज किए हैं, तो जो कि फर्दर बाद में किसी भी डैमेज या फेलियर का रुख इख्तियार कर सकती हैं और वो आपको इंजर्ड भी कर सकती हैं।
डेवलप डिजाइन और प्रोसीजर टू मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ मेंटेनेंस एरर। ठीक है ना, ऐसे प्रोसीजर डिजाइन करने की मेंटेनेंस की एरर को खत्म करें। ठीक है ना, आप अपने जो मैनुअल सिस्टम के साथ साथ कोशिश करें कि आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए, जो कि बाकायदा आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो कि आपकी एक्टिविटीज को मेजर कर सकें और उसमें चांसेस ऑफ मेंटेनेंस एरर जो है वो कम से कम आए। मिनिमाइज और एलिमिनेट द नीड फॉर स्पेशल टूल इक्विपमेंट। अपने सिस्टम को ऐसे डिजाइन करें कि उसमें स्पेशल टूल्स और इक्विपमेंट की नीड ना हो या कम से कम हो। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि आप कोई भी पार्ट या इक्विपमेंट खोलते हैं तो उसको ओपन करने के लिए स्पेशलाइज्ड टूल यूज होते हैं। ठीक है ना, तो जनरली जो नॉर्मल चीजें यूज हो रही हैं उसी को यूज करें, कोई स्पेशल चीज ऐसी ना यूज करें अपने डिजाइन में कि वो फिर जो है वो आपके लिए दर्द-ए-सर बने। Incorporate the device or other measure to permit early detection or prediction of potential failure so that maintenance can be carried out prior to actual failure without somewhat lower risk of hazardous। अच्छा, वही बात है कि आप अपने सिस्टम को है वो अपडेट रखें विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना, ऐसी डिवाइसेस में इनकॉर्पोरेट करें जो कि आपको अर्ली प्रिडिक्शन दे अबाउट पोटेंशियल फेलियर। ठीक है ना, ताकि आप वक्त पे जो है वो मेंटेनेंस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें और एक बड़े हैजर्ड से या रिस्क ऑफ हैजर्ड से जो है वो आप बच सकें और उसको कम कर सकें। जिसके लिए हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था कि पीडीएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं और आपको हर एक प्लांट और इक्विपमेंट की स्टेटस के बारे में बताते हैं कि कब कब जो है वो कहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और आपको पोटेंशियल हैजर्ड्स के बारे में भी आगाह करते हैं। अच्छा, डिजाइन फॉर easy accessibility so that item or unit requiring maintenance are not difficult to remove, replace or service or check। ऐसी डिजाइन करें कि आप उसको इजीली एक्सेस कर सके उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को। ठीक है, जिसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, इस तरह ना हो कि वो आप ऐसी चीज डिजाइन करें कि उसको आप एक्सेसरीज ना कर सकते हैं, उसको रिमूव करना मुश्किल या रिप्लेस करना मुश्किल हो या इवन चेक करना या उसकी सर्विसिंग करना मुश्किल हो। ठीक है ना, तो ऐसी जगह पे आप ऐसी चीजें आप डिजाइन करें जो कि इजी एक्सेसिबल हो। Develop the design such a way to reduce the probability of maintenance work being injured by electric shock contact with a surface hot surface escaping high pressure gases। तो आप अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन करें कि जो वो एक आपको एक रास्ता दिखाए, रास्ता दे एक सेफ मेंटेनेंस वर्कर के लिए। ठीक है ना, कि उसमें जो है प्रोबेबिलिटी कम हो वर्कर की इंजर्ड होने की ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक कांटेक्ट। ठीक है ना, तो आपने ये सारी चीजें इस तरह डिजाइन भी करनी है कि ये वर्कर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक या हार्ड कांटेक्ट सरफेसेस से या हाई प्रेशर और इन चीजों से डैमेज ना हो या इंजर्ड ना हो। एलिमिनेट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट्स क्लोज टू हैजर्डस ऑपरेटिंग इक्विपमेंट और पार्ट। ऐसे सिस्टम को डिजाइन किया जाए कि वो एक ये जो मेंटेनेंस है या एडजस्टमेंट्स हैं क्लोज टू हैजर्डस ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, वो उससे जो है वो हटाएं। मतलब उन ऐसी जगहों पे आप अपने जो मेन इक्विपमेंट्स हैं या प्लांट्स हैं उनको ऐसी जगहों पर आप इंस्टॉल करें कि वो हैजर्डस ऑपरेटिंग इक्विपमेंट से जो है थोड़ा दूर हो और जिससे वो मेंटेनेंस की जो अपॉर्चुनिटी है ऐसी जगहों पे परफॉर्म करने की उसको एलिमिनेट करें। मींस कि जो हैजर्डस ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं आप उनको इस तरह डिजाइन करें कि उसमें जो है वो मेंटेनेंस करने की जो मेंटेनेंस की जो एक्टिविटी है वो जो है एलिमिनेट हो ज्यादा डेंजरस जोन में। Provide guards against moving parts and interlock to block access to hazardous location। ऐसी लोकेशन जहां पे मूविंग पार्ट्स हैं या क्रिटिकल पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आप गार्ड्स दें ताकि वो बंदा जो है वो इजीली उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो इजीली उसको ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज वो उस पर गार्ड्स नहीं है तो मूविंग पार्ट्स जो है वो कहीं पे भी आप कह सकते हैं ना चाहते हुए
कहीं पे भी कुछ इस तरह एक्सीडेंट हो सकता है ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, के वो बंदा काम कर रहा है, पीछे से जो है मूविंग पार्ट्स में उसकी कमीज फंस गई, या कोई इक्विपमेंट जो है उसके साथ टकरा गया जिसकी वजह से इम्पैक्ट फोर्स आया और वो जो है वो इंजर्ड हो गया। कंसीडर टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर प्रेजेंटेड इन टेबल। हमने पिछली क्लास में टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा था। तो कहते हैं चीजों को डिजाइन करने से पहले जो डिजाइनर है उसको टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर को भी कंसिडर करना पड़ेगा फॉर सेफ्टी इन मेंटेनेंस। वो क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लोग जो है वो हाथ से टेस्टिंग करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। ह्यूमन यूजली कंटिन्यूज टू यूज फॉल्टी आइटम्स इक्विपमेंट, वो इस तरह फॉल्टी आइटम्स इक्विपमेंट या जो है वो सेकंड हैंड पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है ना। वो ये सोचते हैं कि जो मैन्युफैक्चर आइटम है वो सारे के सारे सेफ होते हैं, ठीक है ना। हाउ ह्यूमंस आर इजीली कंफ्यूज बाय अनफेमिलियर आइटम, जो कि उनके सामने उनके साथ फेमिलियर ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। ह्यूमन फ्रिक्वेंटली ओवर एस्टिमेट बल्कि वेट्स एंड अंडर एस्टिमेट, ये वही पुरानी चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है कि अंडर एस्टिमेट करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। फिर वो दूर के डिस्टेंस को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये जो है इतना, ये मुझसे दूर है तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और जो करीब की चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सीडेंट की तरफ दावत देते हैं उनको भी ओवरलुक करते हैं कि यार जो होगा देखेंगे, हो सकता है ये चीज़ ठीक हो, ठीक है। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं ह्यूमन के जिनको भी मद्देनजर रखते हुए डिजाइनर्स को चीजें डिजाइन करनी है। क्लियर? कोई क्वेश्चंस? बहुत सर। अच्छा, दरमियान में थोड़ी अटेंडेंस लेते हैं और फिर जो है उसको, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 35 34 हैं, तो दो सेक्शंस को मिला के जो है वो 34 हैं। तो आपकी स्क्रीन नजर आ रही है ना, या आपकी सारी अटेंडेंस भी जो है वो रिकॉर्ड होती है? अच्छा, back to presentation. So there are certain maintenance safety related questions for equipment manufacturers. They must consider these questions while manufacturing the equipments. There are several areas in which attention by equipment manufacturers can improve safety directly and indirectly. In this regard, following question can assist manufacturer to determine whether the common problem that might be encountered during maintenance phase have been properly addressed. ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट वन, आर एडिक्वेट, क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। क्या जो वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो आपको ये सारी जो है मेंटेनेंस के हवाले से और रिपेयर के हवाले से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि क्लियर भी हों, इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हों और एडिकेट भी हों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। वर ह्यूमन फैक्टर प्रिंसिपल यूज टू मिनिमाइज मेंटेनेंस प्रॉब्लम, can the disassemble item equipment for repair be reassembled incorrectly so that it become hazardous to use? The fourth one, are the items requiring frequent maintenance be as accessible as possible? समझ आ रही है इस पॉइंट्स की किस्म और डिटेल में इसको समझाऊं? आ रही है सर समझ। ये क्वेश्चंस है कि जो कि मैन्युफैक्चरर्स को, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को डील करनी चाहिए, ठीक है ना, फॉर सेफ्टी, मेंटेनेंस सेफ्टी of maintenance personnel. Is there any built-in mechanism which should indicate the safety critical item require measurement? ये भी उसको बताना चाहिए कि उसमें कहीं बिल्ट इन मैकेनिज्म तो नहीं है जो कि क्रिटिकल है सेफ्टी रिलेटेड से, ठीक है ना। इज द नीड फॉर स्पेशल टूल फॉर रिपेयरिंग सेफ्टी क्रिटिकल आइटम मिनिमाइज, जो उसने टूल्स यूज किए हुए हैं, ठीक है ना। कोई नीड तो नहीं है स्पेशल टूल्स की फॉर रिपेयरिंग क्रिटिकल आइटम, उस और उसने उसको मिनिमाइज किया हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। वो अपनी मशीन्स को या इक्विपमेंट को या प्लांट को इस तरह डिजाइन करें या इस तरह बनाएं कि जिसमें जो है वो
स्पेशल टूल्स को यूज करने के चांसेस कम हो, ठीक है ना, या वो उसको एलिमिनेट करे स्पेशल टूल्स को। डू द रिपेयर इंस्ट्रक्शन warns when protective gear must be worn because of pending hazards, कि वो आपको वार्न करे कि जो आपके जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो टूटने पर वो वार्न करें। क्या उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन है रिपेयर के इंस्ट्रक्शन के लिए? Is it possible to repair the item under consideration by people other than specially trained and equipped personnel? ठीक है, कि जो रिपेयर्ड या ट्रेन पर्सनल के अलावा जो है आम जो बंदा है वो उसको रिपेयर कर सकता है कि नहीं, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इज द रिपेयर प्रोसेस हैजर्डस टू इन्वॉल्व रिपेयर वर्कर? क्या आपका जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उसमें रिपेयर प्रोसेस हैजर्डस तो नहीं है जिसमें आप अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं? Are the effective warnings against worker on system that can shock people? Is the item designed so that after a failure it would stop operating and not cause damage? Is there a mechanism to indicate that redundant units of safety criticality system have failed? ये सारे के सारे आंसर जो हैं वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करने चाहिए। All the voltage reduced to level at test point to minimize hazard to the maintenance worker, or warning include in instruction to alert repair worker for any dangers। चूंकि अक्सर अगर आपने देखा होगा प्लांट्स में आपको वार्निंग या डेंजरस जोन्स आपको बताया होता है कि डू नॉट इंटर, या अक्सर आपने सीएनजी स्टेशन में भी देखा होगा कि जो मशीनरी है वो लिखा होता है कि ये जो है वो ऑटोमेटिक खुदकार मशीन है और किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है, तो अंदर जाने से गुरेज करें। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि नहीं? इज देयर ड्राइव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स रिप्लेसमेंट? Is there any appropriate mechanism to remove fuel or hazardous fluid from equipment to be repaired? Does the equipment contain safety interlock that must be bypassed to make adjustment or accomplish repairs? Are the test points located at easily reachable locations? ये सारी की सारी जो है वो आंसर्स जो हैं, पहले तो इक्विपमेंट जो है मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और सब के बारे में डिटेल प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो आपका मेंटेनेंस स्टाफ है वो मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पॉइंट्स एंड ही मस्ट फील सेफ। क्योंकि जाहिर है अगर वो सेफ फील नहीं करेगा तो अपना फंक्शन जो है या मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग। पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि मेंटेनेंस के बाद जो है वो मेंटेनेंस कंप्लीट करने के बाद आप जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हो इन ऑर्डर टू शो दैट द इक्विपमेंट और प्लांट इज सेफ एंड वर्किंग इट्स फंक्शन एज लाइक ओरिजिनल, एज लाइक इन ओरिजिनल स्टेट। ठीक है ना? तो जो चीज़ें आपके पास ख़राब हो जाती हैं आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ज़ाहिर है चीज़ें वक्तन वक्तन यूज़ होने से उसमें डैमेज आती है, डिप्रेसिएशन होती है, उसके पार्ट्स जो हैं वो ख़राब होते हैं। ठीक है ना? तो जब आप उसकी रिपेयर करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मेंटेनेंस करने के बाद अब उसकी टेस्टिंग करते हो कि आप वो मशीन या प्लांट जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है और अपने जो उसके इनिशियल जो पैरामीटर्स थे उसी उसी हिसाब से जो है वो अपनी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग हमें हेल्प करती है इन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस परफॉर्म। इट हैज 3 objectives. The first one is ensure that original deficiency has been rectified appropriately, कि जो उसमें जो डिफिशियंसी आई है वो ठीक तरीके से रेक्टिफाई हो गई है कि नहीं। इंश्योर दैट नो न्यू डिफिशियंसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस, उसमें कहीं और ठीक है वो जगह या पार्ट रिपेयर या चेंज कर दिया गया है लेकिन उसके बाद जो है कहीं दूसरी जगह तो कोई मसला नहीं आया। क्योंकि अक्सर होता ही है कि हम जब कोई पार्ट रिपेयर करते हैं तो एक एक मसला तो हम हल कर देते हैं लेकिन उस मशीन या इक्विपमेंट में दूसरा कहीं मसला भी निकल आ जाता है, उसके भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग का मकसद ये है कि हम
इंश्योर करें कि कोई न्यू डेफिशिएंसी तो उसमें नहीं आए। The third one is ensure the item under consideration is ready to perform its specified mission। और ये भी इंश्योर करते हैं कि ठीक तो हो गई है लेकिन अब वो अपना फंक्शन उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नहीं जैसे वो पहले करती थी। तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी लेकिन इन्होंने पॉइंट्स में डिस्कस कर दी। पीटीएम शुड पीएमटी preventive maintenance test post maintenance testing should be carried out after all type of corrective maintenance activity। जाहिर है हम पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग तभी करते हैं जब ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है, और करेक्टिव मेंटेनेंस हम तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट फेल होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद हम उसकी करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। तो ये जो पीएमटी है ये हम करेक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद इसको कैरीड आउट करते हैं, ठीक है ना। एंड एज वेल एज आफ्टर सम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्शंस आर as considered appropriate। Testing should be in accordance with specified type of maintenance, accomplish and improve importance of structure, system parts to facility reliability and safety। अच्छा, टेस्टिंग जो होती है मेंटेनेंस टेस्टिंग जो होती है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होती है, ठीक है ना। और हम उसमें अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और हम जो है उसमें मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पार्ट है, ये फैसिलिटी है, ये रिलायबल है और सेफ है कि नहीं, इसलिए हम ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। In some situation, this may only require verification and check out, but in other formal document, PMT may be necessary। अच्छा, कुछ कंडीशन में हम कुछ लोग पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग में क्या करते हैं, वो बस सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को रिपेयर किया गया है, ठीक किया गया है कि नहीं, और उसको सिर्फ चेक कर देते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें एक्सटेंसिव डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, हम बाकायदा उसको डिटेल से उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी सारी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और उसके बाद जो है उसको हैंड ओवर करते हैं। PMT key elements। Post maintenance testing involves several key elements that includes the first one, clearly defined responsibility of each group involved। जो कि जितने भी मेंटेनेंस पर्सनल्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियरली डिफाइन करें, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस टू प्लानर टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट टेस्ट। जो है गाइडलाइंस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, जो प्लान कर रहा है उसके पास गाइडलाइंस अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन से टेस्ट इस पे परफॉर्म किए जाएं। उसमें वो बेताशा टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। लेकिन जाहिर है वो अपनी कॉस्ट को भी देखेगा, अपनी जो है स्टाफ जो उसके पास नंबर ऑफ पर्सनल्स हैं उन सब को चीज़ों को भी देखेगा, तो उसके मुताबिक जो है प्लानर जो है वो एक्टिविटीज डिज़ाइन करेगा। स्कोप ऑफ इक्विपमेंट टेस्टेड इनकॉर्पोरेट्स ऑल फैसिलिटी इक्विपमेंट डिज़ाइन। जो आपके पास सिस्टम है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इक्विपमेंट के टेस्ट के लिए, वो सारी की सारी उसमें यूज की जाए, ठीक है ना। परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट अंडर द रिलेवेंट सिस्टम ऑपरेशनल पैरामीटर्स। जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं मशीन के, उसी के हिसाब से जो है वो टेस्ट किए जाए और उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए। इस तरह ना हो कि उसकी कैपेसिटी कुछ और है और आप उसको अदर पैरामीटर्स पे टेस्ट करें तो वो आपको रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं देगा। तो एज पर ऑपरेशनल पैरामीटर्स उसको टेस्ट किया जाए और उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाए। स्पेसिफिकेशन ऑफ appropriate test incorporated input received from operating maintenance and technical supports। जो टेस्ट आपने की है, ठीक है ना, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप जो रिसीव करते हैं, इनपुट रिसीव करते हैं मेंटेनेंस के, वो आप अपने पास सेफ रखें और उस बाकायदा उसकी आपके पास चेक लिस्ट होगी जिसमें बताया गया होगा कि इन पैरामीटर्स पे इनके टेस्ट हुए, इस मशीन के या इक्विपमेंट के टेस्ट हुए और उसके रिजल्ट ये हैं, ठीक है ना। टेस्टिंग परफॉर्म विद कंसेंट ऑफ ऑपरेटर ओनर यूजिंग ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड कंडक्टेड एंड रिव्यूड बाय कंपिटेंट पर्सन। जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जो मशीन है या ऑपरेटर है या जो ओनर है मालिक, उससे इजाज़त
लेकर आप टेस्ट परफॉर्म करें, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं। और उसके लिए आपके पास बाकायदा आपके पास परफॉर्मर्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप फिल करते हैं, और उसके बाद जो है वो ऑपरेटर या ओनर से उसके साइन लिए जाते हैं। एंड दिस इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के फ्यूचर में अगर कोई मसला आता है या मेंटेनेंस के दौरान कहीं और कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है ना, या टेस्टिंग के दौरान कहीं, तो वो मालिक जो है या वो ऑपरेटर अवेयर हो, उसकी इजाज़त से ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो। और ये सारी चीज़ें आप जो है वो फिर एक कॉम्पिटेंट पर्सन से रिव्यू भी कराएं, और वो रिव्यू करने के बाद डिसाइड करें कि आया आपको टेस्ट के लिए इजाज़त दी जाए कि ना दी जाए, ठीक है ना। क्योंकि वो कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो एक ओवरलुक करता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है सेफ है कि नहीं। छोटी हम हमारे जहन में तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप जब प्लांट और इक्विपमेंट में जाएं तो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं दैट आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है ना। तो हमारी छोटी सी भी जो है गलती या नज़रअंदाजी जो है वो एक बड़े एक एक्सीडेंट का सबब बन सकती है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि बस चीज़ बन गई और आप उसको टेस्टिंग, सबसे पहले आप उसको देखो ठीक है नहीं ठीक, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करो। अ फॉर्म इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट, ऑथराइज एंड रिव्यू पीएमटी रिजल्ट। तो फॉर्म होता है जिसमें जो कि एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको अलाउ भी किया जाता है, ठीक है ना। और फिर जितने भी पैरामीटर्स हैं टेस्टिंग के दौरान या जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें लिखे जाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपको बताता है कि जी टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस के बाद इसकी टेस्टिंग हुई, इन पैरामीटर्स पे हुई और उसके रिजल्ट ये थे। तो वो जाहिर है मान ओनर को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको बताने के लिए कि जी अब ये अपने वर्किंग कंडीशन पे आ गए और अपने ओरिजिनल रिजल्ट्स के साथ अपनी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक किस्म का डॉक्यूमेंट भी हो जाता है। रेस्ट अगर आप देखें तो कंपनीज की जितने भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं इन टाइप इन सारी मेंटेनेंस पे और इन टेस्टिंग पे, ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब ऑडिट वाले आते हैं तो सारे ये फॉर्म्स और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन को दिखाते हैं कि जी हमारा इस पे इतना खर्चा हुआ, ठीक है, हमने इतनी इनकम गेन की, लेकिन हमारा इतना खर्चा जो है वो इस पे हुआ। तो वो सारी अपनी जो है लॉस और प्रॉफिट जो है वो इनको इस चीज़ों में एडजस्ट भी करते हैं। ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेड पीएमटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर और ओनर ऑफ आइटम्स इक्विपमेंट रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट पीएमटी इंक्लूड द फर्स्ट वन, defining the need for a level of PMT as well as for documented approval, कि कौन से लेवल की पोस्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग टेस्टिंग चाहिए, ठीक है ना, और उसके अप्रूवल की डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डिफाइन करेगा कि कौन सी लेवल की टेस्टिंग उसको रिक्वायर्ड है। मिनिमाइज द रिडेंसी ऑफ पीएमटी एंड पीएमटी एक्सेसिवनेस, ज़्यादातर उसको यूज़ भी ना करें और ऐसे टेस्ट भी ना परफॉर्म करे जो कि रिडेंडेंट हो, जो किसी के काम के ना हो। आज उस पर खर्चा भी ज़ाहिर है आता है टेस्ट पे, तो ऐसे टेस्ट पीएमटीज ना कराई जाएं जो कि रिडेंडेंट हो और ज़्यादा एक्सेसिव भी उसकी टेस्टिंग ना कराएं कि हर वक्त बस आप अपने महीने बाद आप उसकी टेस्टिंग कराते फिरें। दैट विल गिव यू सर्टन कॉस्ट, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मेंटेनेंस एक्टिविटी एज रिक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग एप्लीकेबल टेस्टिंग, असिस्टेंट प्रोवाइड करें टेस्टिंग के दौरान जो जो उस पे अप्लाई हो रही हैं या एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना। क्लियरली डिफाइनिंग ऑपरेशनल पैरामीटर एंड एसोसिएटेड क्राइटेरिया, जो ऑपरेटर है वो रिस्पॉन्सिबल है वो डिफाइन करे कि इस प्लांट की मशीन की जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं क्या क्या है, किन किन पैरामीटर्स पे उसको वो चला रहे हैं, ठीक है ना, ताकि जब टेस्टिंग के दौरान जो है वो टेस्टिंग पर्सनल को पता चले कि इस पैरामीटर्स पे वो प्लांट को टेस्ट करे। emphasize the importance of ensuring configuration management, ठीक है ना। वो इस पे उसका ये काम है कि वो उसको जो मैनेजमेंट है पीएमटी पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग की, उसको इंश्योर करे कि वो उसी जो है पैरामीटर्स या उसी सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक परफॉर्म करे जो वो ऑपरेटर उसको बता रहा है।
ensure proper authorization, performance examination and documentation of PMT before returning the equipment item to be returned. वो ऑपरेटर इंश्योर करेगा कि वो बाकायदा वो सारी की सारी ये जो डेटा है अथोराइजेशन की कि उसने इजाज़त ली है कि नहीं, परफॉर्मेंस क्या है मशीन की, एग्जामिनेशन और सारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर पीएमटी है वो इंश्योर करेगा कि ये जो है ठीक करने के बाद जब रिटर्न होता है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि नहीं. इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ all associated delay test before or in conjunction with returning the equipment item. वो ये भी इंश्योर करेगा कि जितनी डिलेस टेस्ट हैं बिफोर और इन कंजक्शन विद रिटर्निंग इक्विपमेंट्स वो परफॉर्म हुई है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है. ठीक है. Restoring structure, system and component to exact set point for active or standby modes subsequent to testing. और उसकी ये भी एक जिम्मेदारी ये है कि वो देखेगा कि आया ये स्ट्रक्चर अपनी ओरिजिनल हालत में रिस्टोर हुआ है. वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो सिस्टम भी हो सकता है और वो कोई कंपोनेंट भी हो सकता है. तो वो आया अपने वो एक्टिव पॉइंट पे स्टोर हुआ है कि नहीं, और स्टैंड बाय मूड सब्सिक्वेंट टू टेस्टिंग के. और या अगर आपके पास कोई स्टैंड बाय सिस्टम है, ठीक है ना, तो वो आया जो है वो टेस्टिंग के लिए सब्सिक्वेंट मूड है कि नहीं. ठीक है ना. फिर यहां तक समझ आ गई आपको? यस सर। एक मिनट ब्रेक दे, मैं जरा पानी पीता हूँ, आप लोग भी पानी मानी पी लें. ठीक है. ओके सर. अच्छा, शुरू करें? यस सर. यस सर. टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी आइटम्स फॉर पीएमटी. कौन कौन सी मेंटेनेंस एक्टिविटीज या आइटम है जो कि पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग के लिए यूज होती हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी इन व्हिच पीएमटी कुड बी ऑफ वैल्यू. सम एग्जांपल्स आर लिस्टेड बिलो. नंबर 1, maintenance that affect operation or integrity of gas, fluid or gas fluid system or part within such systems. ठीक है ना. उन चीज़ों की एक्टिविटीज जो इफेक्ट करती है ऑपरेशन इंटीग्रिटी, गैस जिस तरह गैस हो गया, फ्लूड फ्लो हो रहा है, ऐसे पार्ट्स, उनकी एक्टिविटीज को जो है वो आपने केयरफुली हैंडल करना है. ठीक है ना. वो उनको इफेक्ट कर सकती हैं. टेस्ट एंड मेजर इक्विपमेंट, जो आपके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं या मेजर, वो भी पीएमटी की एक्टिविटीज पे इफेक्ट हो सकती हैं. ठीक है ना, कि कौन सा आप टेस्ट यूज कर रहे हैं और उसके लिए आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे आप उसको यूज कर रहे हैं. मेंटेनेंस दैट इफेक्ट इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट ई.जी. हाई वोल्टेज और ब्रेकर कनेक्शन, ये भी इफेक्ट करती है. केमिस्ट्री एंड हेल्थ फिजिक्स एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंटेशन. ठीक है ना. ये जो हेल्थ फिजिक्स एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, जितने भी टूल्स एंड जो है आपके पास जिससे आप टेस्टिंग करते हैं या आप उसको ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस पे भी आपकी ये जो है पीएमटी डिपेंड करती है. मेंटेनेंस दैट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ पार्ट कंपोनेंट्स फिटिंग, ये भी पीएमटी पे इफेक्ट करती है कि किस तरह आप उस पार्ट की स्ट्रेंथ क्या है, कंपोनेंट्स की फिटिंग किस तरह हुई है. मेंटेनेंस दैट इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर कंट्रोल सर्किटरी ई.जी. लिमिट स्विचेस, कंट्रोलर, प्रोटेक्शन रिलेज, ये भी आपकी पीएमटी पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग पे इफेक्ट करती है. ठीक है ना. ये कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं जिनकी पीएमटी में काफ़ी वैल्यूज हैं और इनको आप लोगों ने देखना है. Maintenance that affect parts in an instrument loop or instrument detectors. हाँ,
वो उन पार्ट्स की मेंटेनेंस जो कि अफेक्ट करती है आपके इंस्ट्रूमेंट की लूप को या इंस्ट्रूमेंट को डिटेक्ट करने में, कि जो लूप में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट चेक चल रहे हैं, ठीक है ना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये भी और फिर उसके बाद उसकी पीएमटी करना, ये भी लाजमी है फॉर सेफ ऑपरेशन। द लास्ट लेक्चर इज कॉमन पीएमटी एक्टिविटीज की। कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज हैं पीएमटी की, जिसमें सबसे पहले है लीक रेट टेस्टिंग। ठीक है ना, कि किस एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लांट है जिसमें बॉयलर है या कोई इस तरह का इक्विपमेंट है जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो या गैस फ्लो हो रहा है, जिस तरह ऑयल एंड गैस में, तो उसके लिए लीक रेट टेस्टिंग करते हैं कि वो जो डिटरमाइन करता है कि इसमें लीक कितने रेट से, अगर उसमें लीक है तो वो लीक कितने रेट से है, उसको देखना, उसके लिए हम पोस्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है ना। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब ये बॉयलर या प्रेशर वेसल बनते हैं तो इसकी लीकेज टेस्ट होती है। ठीक है ना, जो कि आप बिफोर इंस्टॉलिंग इट या बिफोर गोइंग इनटू रियल ऑपरेशन ऑफ दैट इक्विपमेंट, उससे पहले उसकी लीक टेस्टिंग होती है। और उस लीक टेस्टिंग में बकायदा वाटर यूज करते हैं और उसको एक सर्टेन प्रेशर से इंसर्ट किया जाता है। तो जितनी भी पाइपिंग हुई हुई है बॉयलर्स के साथ या हीट एक्सचेंजर, तो उसमें जितने जहाँ जहाँ पे भी कहीं लीक्स हैं तो वो लीक्स अगर हैं तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। और फिर लीक रेटिंग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि अगर लीक हो रही है तो कितने रेट से हो रही है। आमतौर पे वी डू नॉट अलाउ लीकेज इन आवर सिस्टम, क्योंकि लीकेज क्या है, इज अ लॉस, लॉस है वो एनर्जी की, या जो आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वो लीक हो रहा है, तो ये कंपनी को लॉस है, तो उसको फिर हम हैंडल करते हैं। ठीक है ना। करंट वोल्टेज और इंटीग्रिटी चेक, इन चीज़ों को चेक करना कि आया वोल्टेज जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं, या आउटपुट पर वोल्टेज है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है। कंपोनेंट कैलिब्रेशन और अलाइनमेंट, जो आपकी इक्विपमेंट से जो रिपेयर हुए हैं उसकी कम कैलिब्रेशन हुई है, अलाइन है कि नहीं। हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्पेसिफाइड बाय कोड, जो हमें कोड देते, जिस तरह के ये जो बॉयलर की टेस्टिंग होती है या हीट एक्सचेंजर की, ये एजमी के कोड्स होते हैं और उस एजमी की कोड्स की बेस पे हम उसकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वेदर द सिस्टम इज सेफ और अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन पैरामीटर्स और नॉट। विजुअल या डायमेंशनल इंस्पेक्शन करते हैं हम आमतौर पे, आंख से देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम उसकी फिर डायमेंशनल इंस्पेक्शन भी करते हैं कि इसकी डायमेंशन यहाँ पे एज पर डिज़ाइन है कि नहीं। पार्ट ऑपरेशनल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो, वाइब्रेशन, इन चीज़ों की एक्सरसाइज हम करते हैं कि प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, फ्लो कितना है, या वाइब्रेशन है तो उस वाइब्रेशन की मेजरमेंट हम जो करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो पीएमटी एक्टिविटीज़ में आती हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद ये टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें आप मैयर करते हैं और इनको देखते हैं। ठीक है ना। और फिर रिस्पांस टाइम देखते हैं कि कितना रिस्पांस टाइम है, कितना ये जो है कितना जल्दी जो है वो सिस्टम अपनी वैल्यूज जो गेन करता है, जो उसके रिक्वायर्ड आउटपुट्स हैं वो कितने टाइम में देता है। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो है एक्टिविटीज जो है पीएमटी में आती हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Sir, I have a question. जी जी। सर ये जो पोस्ट मेंटेनेंस एक्टिविटी टेस्टिंग की जो एक्टिविटीज हैं सर, वो मेंटेनेंस से पहले भी तो सर हम जब हम प्लांट को चेक कर रहे होते हैं, जब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो नहीं ये वो तो एक्टिविटीज बच्चे, तब नहीं परफॉर्म करते? नहीं वो तो आप देखें, वो तो जब चल रहा होता है तो वो तो आप एक्टिविटीज जो करते हैं वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना। ये तो जब आप देखें एक चीज फेल हो जाती है, ठीक है, उसको आप रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद उसको अगर वो क्रिटिकल है तो इस तरह तो नहीं है ना कि रिपेयर करने के बाद आप डायरेक्ट उसको स्टार्ट कर दे के बस ठीक है स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। तो उस चूंकि वो मैंने आपको कहा था चीजें इतनी छोटी नहीं होती, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है ना। तो डायरेक्ट उनको चलाना वो एक रिस्क है। ठीक है ना। इसलिए जब हम मेंटेनेंस एक्टिविटी सब चीजें मेजर फॉल्ट्स उन सब चीजों को ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद फिर हम
जो है वंस जो उसके सारे पैरामीटर्स हैं वो हमें डिफाइन हो जाए कि हाँ अब इतनी स्पीड पे हम इसको चला रहे हैं या इन इन्फेक्टर्स पे हम चला रहे हैं और ये हमें ये रिजल्ट दे रहा है, जो कि हमारे ओरिजिनल जो खराबी से पहले थी वही रिजल्ट्स हमें दे रहा है, तो हम कहते हैं नाउ द मशीन जो है वो ओके है और इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन विद फुल, जो हम कहते हैं कि फुल लोड पे हम इसको फिर चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम पीएमटी परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? अब्दुल समद, सो तो नहीं रहे? Okay ji, I'm going to turn off the recording. After that you can ask any other question that is related to your problems. Clear? Okay, sir. Okay, thank you for your time.